بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پنجاب اور کے میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کا فیصلہ سنا دیا۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے صدر عارف الوی کی دی گئی تاریخ کل عدم قرار دے دی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ پنجاب میں 9 اپریل کو انتخابات ممکن نہیں تو مشاورت سے تاریخ بدلی جا سکتی ہے۔ اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 روز میں انتخابات ہونا لازم ہے۔ وفاق الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے تمام سہولتیں فراہم کرے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال نے الیکشن التماس خود نوٹس کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین میں انتخابات کے لیے 60 اور 90 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ اسمبلی کی تحلیل سے 90 روز میں انتخابات ہونا لازم ہے۔ الیکشن کمیشن سیکشن 57 اور 58 کے تحت اگر الیکشن 90 روز میں نہیں ہو سکتے تو کم سے کم وقت میں انتخابات کی نئی تاریخ تجویز کی جائے۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا اختیار گورنر کا ہے۔ صدر کی دی گئی تاریخ کا حکم کالعدم قرار دے دیا گیا۔ پنجاب پر صدر مملکت کی دی گئی تاریخ لاگو ہوگی۔ الیکشن کمیشن صدر اور گورنر سے مشاورت کا پابند ہے۔ فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ صدر مملکت الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں۔ گورنر کے پی نے تاریخ نہ دے کر آئینی خلاف ورزی کی۔ گورنر کے پی بھی الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 222 کے تحت انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام وفاقی اور صوبائی اتھارٹیز الیکشن کمیشن کی معاونت کریں۔ وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کو سہولیات، عملہ اور سیکورٹی فراہم کرے۔ نگران حکومتیں بھی الیکشن کمیشن کو مکمل معاونت فراہم کریں۔ فیصلہ آئین کے مطابق ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور کے سینئر وکلاء نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ کہا حکم پر تمام اداروں کو عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اعلیٰ عدالت نے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کی ہے۔ مزید دیکھیے محمود ظہیر کی اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے 90 روز میں پنجاب میں الیکشن کروانے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور کے سینئر وکلاء کا کہنا تھا کہ فیصلہ عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے۔ سپریم کورٹ نے 90 روز میں الیکشن کا فیصلہ دے کر آئین پر عملداری کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ نے 22 کروڑ عوام کے دل کی بات کہہ دی اور انتہائی میرٹ پہ اور سچ اور آئین کی بالادستی کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی اور وکلاء کا اتحاد ہوگا، جس کے بیس پہ ہم آگے بڑھیں گے اور عمران خان صاحب کا ویژن کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے نا وہ آئین اور قانون کے مطابق دیا ہے۔ 90 دن کے بعد عبوری حکومت کے پاس قانون کے مطابق 1 سیکنڈ رہنے کی بھی کوئی قانونی پروویژن یعنی کہ کوئی قانون موجود نہیں ہے، تو سپریم کورٹ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سینئر نیب صدر بہاولپور ہائی کورٹ بار شیخ محبوب عالم اور سینئر وکیل ثاقب طارق مخدوم کلیم اللہ ہاشمی سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اب اداروں کو عمل کرنا ہوگا ورنہ توہین عدالت لگ جائے گی۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کی لیٹر اینڈ اسپرٹ کمپلائنس ہوگی اور یہ اسٹیٹ کے باقی آرگن جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے کمپلائنس کرنے کے پابند ہیں اور ہوگی۔ بالکل ہونے چاہیے، اور ادارے بھی 220 آرٹیکل کے تحت پابند ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے بالکل اس کے ساتھ دیں اور الیکشن ہونا چاہیے، اور یہ آئین کی جیت ہے، آئین کی جیت عوام کی جیت۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر بہاولپور کے وکلاء نے خوشی کا اظہار کیا۔ ILF وکلاء نے عمران خان کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ اب آپ کو بتائیں سابق MP سردار عبدالحی دستی کے گھر سے 13.5 کروڑ روپے برآمدی کا معاملہ ہے۔ سردار عبدالحی دستی حفاظتی ضمانت لینے کے لیے ہائی کورٹ ملتان بینچ پہنچ گئے ہیں۔ جسٹس ایس جاوید گھرال نے سردار عبدالحی دستی کے حفاظتی ضمانت 7 مارچ تک منظور کر لی۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں ماہر عمران کی اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کے سابق MP سردار عبدالحی دستی کے گھر اینٹی کرپشن کا چھاپا، گھر سے 13.5 کروڑ روپے کی ملکی و غیر ملکی رقم برآمد۔ مقدمہ درج ہونے پر انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے ہائی کورٹ ملتان بینچ سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے وکلاء کے دلائل کے بعد 7 مارچ تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ اس موقع پر روہی سے گفتگو میں عبدالحی دستی کا کہنا تھا کہ خاندانی زمیندار ہوں، کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، ان کے پاس مکمل منی ٹریل موجود ہے۔ زیادہ وزیر اعلیٰ رہ گئے، میرے تایا 6 دفعہ MP رہے ہیں، میرے والد صاحب چیئرمین بلدیہ رہے ہیں، اور ہماری اللہ کا بہت شکر ہے بہت بڑی پراپرٹی ہے شہر کے اندر۔ میرا تو ایک کنال اگر میں بیچنا چاہوں وہ تقریباً 15-20 کروڑ کا ہے، تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ سارا اصل میں وکٹمائز کر رہے ہیں، انتقامی کارروائیاں چل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور یہ انہوں نے آغاز کیا ہے میری گرفتاری۔ عبدالحی دستی کا مزید کہنا تھا کہ انہیں عمران خان کو چھوڑنے کے لیے 50 کروڑ روپے کی آفر کروائی گئی تھی، جو انہوں نے ٹھکرا دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ DG اینٹی کرپشن کے خلاف عدالت عالیہ سے رجوع کروں گا۔ سردار عبدالحی دستی کے خلاف بے بنیاد ایک پرچہ درج ہوا ہے جو اینٹی کرپشن پنجاب نے درج کیا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے پروٹیکٹیو بیل ان کی کرائی ہے مسٹر جسٹس گرال صاحب کی عدالت سے، تو منگل تک ان کو پروٹیکٹیو بیل ملی ہے۔ انشاءاللہ ہم وہاں جائیں گے، اپنا موقف پیش کریں گے اور انشاءاللہ ان کی بیل کنفرم کروائیں گے۔
अब्दुल हई दस्ती के वकील राणा आसिफ सईद का कहना था कि अब्दुल हई दस्ती के दादा अब्दुल हमीद दस्ती साबिक वज़ीर आला पंजाब रहे हैं। उनके चचा 7 मरतबा MPA रहे। अब्दुल हई दस्ती वज़ीर आला के मुशीर रहे हैं। सियासी बुनियादों पर मुकदमा बनाया गया। कैमरामैन फहीम के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। अब आपको बताएं, मरीजों के लिए अब बीमारियों से छुटकारा पाना मुश्किल तर हो गया। शहर मुल्तान में महंगी अद्वियात मजीद महंगी हो गई। ब्लड प्रेशर, एंटीबायोटिक अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मरीज महंगी अद्वियात खरीदने के बजाय दर्द सहने पर मजबूर हैं। देखते हैं काशिफ रजा की इस रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई ने अद्वियात को भी न बख्शा। आम आदमी के लिए इलाज मुआवजा करवाना भी मुश्किल तर हो गया। अद्विया साज कंपनियों की मनमानियां जारी, बढ़ती महंगाई में अपना हिस्सा डाल दिया। अमराजे कल्ब, ब्लड प्रेशर, इंसुलिन, मेदे, खांसी के सिरप, एंटीबायोटिक व दीगर अद्वियात की कीमतों में आए रोज इजाफा मामूल बन गया है। इतनी महंगाई हो गई कि आम आदमी की पहुंच से दूर है। मैं खुद अभी दवाई लेने आया हूँ, 200-400 की जो दवा है इस वक्त 1000-1200 के करीब है। गरीब आदमी 500 रुपये दिहाड़ी लेने वाला, बताओ अब क्या करे। सारी तो अद्वियात अस्पताल में दस्तयाब तो नहीं है, बाहर से ले आओ, बाहर से बहुत ज़्यादा रेट है। गवर्नमेंट को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, कोई इस तरह पॉलिसी बनानी चाहिए कि आम गरीब आवाम के लिए कोई थोड़ी सी सहूलत बन जाए। इंसुलिन की कीमत 830 रुपए से बढ़ाकर 914 रुपए कर दी गई। खून पतला करने वाली गोली की डब्बी की कीमत 193 रुपए से बढ़कर 215 रुपए और खांसी का सिरप 69 रुपए से बढ़कर 75 रुपए का हो गया। जबकि सांस के मरीजों के लिए मोंटीका मेडिसिन का पैकेट 40 रुपए महंगा होकर 440 रुपए में फरोख्त होने लगा। मैदे के लिए जोपेंट गोली की डब्बी की कीमत 595 रुपए से बढ़कर 654 रुपए कर दी गई। मेडिसिन में इतनी महंगी हो गई है, कुछ कंपनीज ने अपनी कंपनीज बंद कर दी हैं सर। इतनी महंगी हो गई हैं, हम दवाई लें, बच्चों को बीमार हैं निश्तर लेके जाते हैं सर जी, हम डॉक्टरों के पास लेके नहीं जाते सर। इन्होंने इतना महंगाई जीना भी हराम कर दिया है। दवाइयाँ गरीब की पहुंच से दूर कर दी गए हैं। गरीब महंगाई इतनी कर दी है PDM वालों ने कि गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब बेचारा किधर जाए। एंटीबायोटिक मेडिसिन ऑगमेंटन 1 ग्राम डब्बी की कीमत 283 रुपए से बढ़कर 297 रुपए और ब्लड प्रेशर की गोली अटीनोलॉल की डब्बी की कीमत 65 रुपए से बढ़ाकर 115 रुपए कर दी गई। अद्वियात की कीमतों में आए रोज इजाफा लोगों के लिए परेशान कुन है। बीमारियों में घिरे लोग जब अद्वियात खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर पर आते हैं तो कीमतें सुनकर मजीद बीमार हो जाते हैं। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ काशिफ रजा, रोही न्यूज। रहीम यार खान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज। एपका मेंबरान कलम छोड़कर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत महंगाई के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करे। अगर मुतालबात तस्लीम ना हुए तो एहतजाज का दायरा-कार वसी करेंगे। मज़ीद देखिए आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का महंगाई के बढ़ते सुनामी के खिलाफ एहतजाज। एपका मेंबरान अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए और कलम छोड़ हड़ताल करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में नारे लगाए। एपका मुलाजमीन का कहना था कि कई सालों से तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। मेडिकल कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट में भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें वही हैं मगर इखराजात 4 गुना बढ़ गए। महंगाई से जीना मुश्किल हो गया। आज आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की मरकजी और सूबाई क़यादत के फैसले के मुताबिक बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ और तनख्वाहों में इजाफे के हक में आज पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में क्लर्कों और सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 1 तक 17 के जो मुलाजमीन हैं वो दफातर में उन्होंने हड़ताल की है। अगर हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो एपका की मरकजी क़यादत का इजलास हो रहा है और आइंदा का लहे अमल का वो ऐलान करेंगे कि क्या शेड्यूल है। एपका की मरकजी क़यादत ने अपना 11 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड हुकाम बाला के सामने पेश कर दिया। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो मुस्तकबिल में बड़ा एहतजाज करेंगे और मुतालबात के तस्लीम होने पर ही एहतजाज खत्म करेंगे। हम ये एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए हम मुकम्मल दफ्तरी तालाबंदी करेंगे और कोई अहलकार, कोई सरकारी मुलाजम किसी दफ्तर में काम नहीं करेगा। एहतजाजी कैंप लगाएंगे, हुकूमत के खिलाफ सख्त से सख्त लायामल तैयार करेंगे। हमारी तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए। इस महंगाई के दौर में मुलाजमों का जीना मुश्किल हो चुका है। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत को क्लैरिकल स्टाफ के तमाम मुतालबात मानने चाहिए ताकि सरकारी मुलाजमीन मौली तौर पर मजबूत हों और उनका मियार जिंदगी भी बुलंद हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान शहर में 7वीं और पहली डिजिटल कौमी मरदमशुमारी का आगाज। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक ने डिजिटल मरदमशुमारी का इफ्तिताह किया। RPO मुल्तान और AC सिटी भी इस मौका पर कमिश्नर के हमरा थे। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान की पहली डिजिटल और मजमूई तौर पर 7वीं कौमी मर्दमशुमारी का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने गुलगश्त के इलाके में घर पर नंबर लगाकर कौमी मर्दमशुमारी का इफ्तिताह किया। इस मौका पर RPO मुल्तान, ACCT और शुमार कुनंदगान भी मौजूद थे। कमिश्नर आमिर खटक ने मर्दमशुमारी के तमाम इंतजामी मामलात पर भी तफसील से गुफ्तगू की। फर्स्ट टाइम ये डिजिटल मर्दमशुमारी स्टार्ट हुई है। इससे पहले पायलट फेज में मुल्तान में, सिटी में, शुजाबाद में कुछ सदर की यूसीज थी, उसमें ये कंप्लीट हो चुका है। उसमें जो भी चीज़ें सामने आई थी उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको मजीद इम्प्रूव किया है और PBS की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है इफेक्टिवली। RPO मुल्तान सुहेल चौधरी का कहना था कि 5000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। शुमार कुनंदगान को मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पुलिस ने तकरीबन 6000 से ज़्यादा हमारे न्यूमरेटर्स हैं। हर न्यूमरेटर के साथ एक ऑफिसर हमने डिटेल किया है। बैकअप के तौर पे हमारी QRF टीम्स भी हैं, पेट्रोलिंग भी है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बैक एंड कॉल पर हैं और वो भी हमारे साथ सिक्योरिटी कवर को अरेंजमेंट को देख रही हैं। इंशाअल्लाह ये महीने के लिए जो एक्टिविटी होगी इसमें दिन रात जब भी हमारे न्यूमरेटर्स फील्ड में होंगे उनके साथ हमारी सिक्योरिटी कवर मौजूद होगा। कमिश्नर मुल्तान का मजीद कहना था कि शुमार कुनंदगान कौमी फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। शहरियों के ताउन से ही मर्दमशुमारी को कामयाब किया जा सकता है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, रहीम यार खान में आलमी सिविल डिफेंस डे बनाया गया। इसी हवाले से सिविल डिफेंस ऑफिस में तकरीब और आगाही वाक का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी का इस मौका पर कहना था कि सिविल डिफेंस मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहे। अमर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। खान में आलमी सिविल डिफेंस डे पर महकमा सिविल डिफेंस में शानदार तकरीब सजाई गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। चीफ वार्डन सिविल डिफेंस शौकत हयात, ताजिर बरादरी, फलाही तंजीमें, सिविल डिफेंस, रजाकार और तलबा की बड़ी तादाद भी तकरीब में शरीक हुई। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने सिविल डिफेंस दफ्तर और सिविल डिफेंस रजाकारों के लगाए स्टॉल्स का भी खसूसी विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी की ज़ेरे क़यादत आलमी सिविल डिफेंस डे पर आगाही वाक भी निकाली गई, जो सिविल डिफेंस दफ्तर से शुरू हुई और सिटी सेंटर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी का कहना था कि सिविल डिफेंस के रजाकार फर्जी मशकों में हिस्सा लेते हैं और एमरजेंसी की सूरत हाल में फराइज सर अंजाम देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आज के दिन इनकी खिदमात को सराहा जाता है। जो मार्टायर्स हैं उनकी तारीफ की जाती है, उनके साले सवाब के लिए और उनकी कुर्बानी को याद करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। रहीम यार खान में भी पूरी दुनिया की तरह और पूरे पाकिस्तान और पंजाब की तरह सिविल डिफेंस ने आज अपने शोहदा की याद में ये दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। 1 मार्च आज हमारा अवेयरनेस का दिन है। आज हम लोगों को बुला रहे हैं, हमने सिविल सोसाइटी को साथ बुलाया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे शाना बशाना खड़े हों, क्योंकि किसी किस्म का भी कोई डिजास्टर हो तो सबसे पहले जो पहुंचते हैं वो सिविल डिफेंस के रजाकार होते हैं। हम चाह रहे हैं कि आप दोस्त भी हमारे साथ शाना बशाना खड़े हों और मिलकर कौम और मुल्क की खिदमत करें। आगाही वाक के आखिर में मुल्क की सालमियत, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। बहावलपुर में सिविल डिफेंस के आलमी दिन पर वाक डिप्टी कमिश्नर ज़हीन अनवर की ज़ेर क़यादत DC ऑफिस ता फरीद गेट रैली निकाली गई। इस मौका पर DC का कहना था कि महकमा सिविल डिफेंस का मुआशरे में अहम किरदार है। देखते हैं महमूद ज़हीर की इस रिपोर्ट में। सिविल डिफेंस के आलमी दिन के मौका पर बहावलपुर में रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर ने की। इस मौका पर DC का कहना था कि पूरी दुनिया सिविल डिफेंस की कारकर्दगी को सराहती है। चाहे अमन की सिचुएशन हो या कोई इस तरह की नागहानी आफत हो, उसमें सिविल डिफेंस का स्टाफ जो है वो बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और ये बेचारे, आपको पता है, जिन कंडीशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी कोई रेगुलर सच सैलरी पैकेज भी नहीं है, वो वाली पब्लिक एमिनिटीज़ भी शायद इनको अवेलेबल ना हो जो एक रेगुलर एम्प्लॉयज़ के राइट्स होते हैं। बावलपुर में भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी खिदमात जो है उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हम आज सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इंचार्ज सिविल डिफेंस बहावलपुर फरीहा जाफर का कहना था कि नामसाद हालात और स्टाफ की कमी के बावजूद आवाम को बेहतर सर्विसेज फराहम करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में है तो जज्बे के साथ हम आए हुए हैं और वाकई आपने कहा कि नामसाइद हालात के अंदर ही हमारे बम डिस्पोजल स्क्वाड 24 आवर्स
वो जहाँ पे भी है वो रिस्पांस करता है, वो काम कर रहा है, चाहे वो कहीं पे इमरजेंसी ड्यूटीज हो या कहीं पे रिस्पांस करना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्क्वाड अपने जज्बे की वजह से ही, जैसे हमारे अदाकारान का जज्बा है वैसे हमारे ऑफिसरान का जज्बा है, और वो उसके तहत काम करके अपने शहर को हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। वाक में सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तबकात ने भरपूर शिरकत की और आवाम की खिदमत जारी रखने का अज़म का इजहार किया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान में चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफी की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स की नौ मुंतखब बॉडी का इजलास मुल्की माशी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद देखिए सैयद ज़ुहैब बुखारी की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के नौ मुंतखब ओहदेदारान का इजलास हुआ। मुल्की माशी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर व फिक्र किया गया। 7 मार्च की 11 बजे की पूरे जनूबी पंजाब में हम इन बुराइयों के खिलाफ, इन मसाइल के खिलाफ हर ज़िला में, हर तहसील हेडक्वार्टर में एहतजाज करेंगे और फिर अगला लाए अमल भी देंगे। नौ मुंतखब ओहदेदारान का कहना था कि टैक्सेस की भरमार से ताजिर बरादरी मुश्किलात का शिकार है। अगवा बराए तवान हो रहा है, पिछले दिनों भी अगवा बराए तवान हो रहा है, और उसके अलावा जो है हमारे जो है उधर डकैती की वारदात बहुत ज़्यादा ज़ोरों पे है। हमें कारोबार करना मुहाल हो गया है। गवर्नमेंट हमारी हुकाम बाला से जो है अपील है कि इसके ऊपर नज़रसानी करे। इस मौका पर नौ मुंतखब ओहदेदारान ने बेतहाशा टैक्सों के खिलाफ 7 मार्च को तमाम इजलाम में एहतजाज का ऐलान कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, मुल्तान। मुल्तान में रिमझिम गंदम की फसल के लिए बाइसे रहमत बन गई। पानी की कमी पूरी, हल्की बारिश से फसलें लहलहाने लगी। माहिरीन ज़राअत का कहना था कि मजीद बारिशों से गंदम की फसल गिरने का खदशा है। मजीद देखिए अली रियाज की इस रिपोर्ट में। शहर औलिया में बूंदाबांदी गंदम की फसल के लिए बाइसे रहमत बन गई। हल्की बारिश ने पानी की कमी पूरी कर दी। माहिरीन ने आइंदा दिनों में मजीद बारिशों की सूरत में फसल गिरने का खदशा जाहिर कर दिया। हल्की फुल्की बारिश हो रही है, ये माशाल्लाह जो गंदम और इसके अलावा जो दूसरी फसलात हैं उसके लिए माशाल्लाह ये फ़ायदेमंद साबित हो रही है। लेकिन अगर खुदा ना खासा ये बारिश ज़्यादा होती है, उसके साथ हवा भी तेज़ चलती है, तो फिर जो है उसका गंदम का गिरने का चांस होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत का कहना था कि मौजूदा मौसमी सूरत हाल में काश्तकार आबपाशी से गुरेज करें। आइंदा दिनों में नमी का तनासुब बढ़ने से कंगी के हमले का खतरा है। खासकर मैं यही कहूँगा कि इस टाइम जो है वो अगले 4 से 5 दिन जो है वो गंदम की फसल को बिल्कुल आबपाशी ना करें, क्योंकि अगर आबपाशी करेंगी और हवा भी चलेगी तो वो फसल गिर जाएगी। तो इसलिए काश्तकार जो है वो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनजर रखें ताकि हम अपने गंदम की फसल को बचा के इस साल भी जो है अच्छी पैदावार हासिल कर। माहिरीन के मुताबिक गंदम की फसल के लिए अगले चंद हफ्ते बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान में फुटबॉल का बड़ा टाकरा। कोयटा फुटबॉल क्लब और डीएफए फुटबॉल क्लब के माबैन दोस्ताना मैच का इनेकाद किया गया। सदर डीएफए मियां जावेद कुरैशी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। विनर टीम को ट्रॉफी और इनामात दिए गए। मज़ीद देखिए सैयद ज़ुहैब बुखारी की इस रिपोर्ट में। फुटबॉल एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम कोयटा फुटबॉल क्लब और डीएफए फुटबॉल क्लब के माबैन दोस्ताना मैच खेला गया। सदर डीएफए मियां जावेद कुरैशी, सियासी रहनुमा राना इब्राहिम मदनी और ट्रांसपोर्टर राना ज़ेब बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए और फातेह टीम को ट्रॉफी और इनामात से नवाजा। दोस्ताना मैच है, कोयटा से दोस्त आए हुए हैं हमारे, ये मुल्तान स्पेशल इसीलिए आए हैं कि मैच खेलने के लिए, और स्पोर्ट ग्राउंड में आज मैच हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट डीएफए के साथ इनका मैच है और मैं यही दुआ गो उनके लिए कि इंशाल्लाह जिस तरह हम हमारे पास ये आए, इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट भी इस तरह इंशाल्लाह कोटा खेलने के लिए जाएगी इंशाल्लाह इनके साथ। दोनों टीमों के कप्तानों ने मैच के निकात को सराहा। उनका कहना था कि हुकूमत को खेलों की तरफ भरपूर तवज्जो देनी चाहिए ताकि हस्पताल, वीरान और ग्राउंड आबाद हो सकें। बलोचिस्तान से एक टीम लाई जाए जो इधर दोस्ताना मैच खेला जाए ना, तो मैं ये मुल्तान वालों इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा माहौल दिया है, और रोही चैनल वालों का भी, क्योंकि हस्पताल वीरान उसी वक्त होंगे जब ग्राउंड आबाद होंगे। हम इस बात पे कोयटा से आने वालों को खुशामदीद भी कहते हैं, और ये तासबियत का एक मुंह तोड़ जवाब है कि हमारे कोयटा के मेहमान सरायकी वसेब में आए हैं। हम उनकी मेज़बान भी हैं, उनके शुक्रगुजार भी हैं। कोयटा फुटबॉल क्लब ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच जीत लिया। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ 15,000 जबकि रनर अप को 10,000 नकद इनाम दिया गया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।